Anji beta. So this is the new chapter, that is wind, storm and cyclone. In this chapter, you are going to study about the air or the wind. That is, can anybody please describe me what is the difference between the air and the wind? बस difference air क्या है? Air is the mixture of gases, but air term हम कभी यूज करते हैं when this is not moving, right? अब इस समय पे हमारे around air present है, we say that air is present all around us, right? So that is air. But if it is windy means that is अगर यहाँ पे air blow कर रही होगी, move कर रही होगी, तब हम इसको बोलेंगे it's the wind. And then what is the difference between the cyclone, wind and the storm? Wind is the gentle blowing, we can say, है ना? हाँ. And this is a strong blowing or the harsh blowing of the wind, that is called as a storm. ठीक है? हाँ. This is accompanied with very, very high pressures, intolerable types of high pressures, that is called as a storm. Okay. And when the storms come in the water bodies, then it is accompanied or on the terrestrial land, and it is very at a high speed, having a particular structure. Structure होता है साइक्लोन का. पता है आपने साइक्लोन सुना है कभी? साइक्लोन सुना है, देखा भी होगा आप लोगों ने कहीं डिस्कवरी चैनल या कहीं पे. हाँ, तो साइक्लोन्स अगर वाटर में हो तो उसको सुनामी जैसा नाम दिया जाता है. ठीक है, लेकिन अगर साइक्लोन्स हमारे टेरेस्ट्रियल लैंड पे हो तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट एरियाज अलग अलग नाम दिए गए हैं, बट अदरवाइज अ कॉमन टर्म विच इज साइक्लोन. साइक्लोन जब भी एयर मूव करती है, अगर आप लोगों ने कहीं सुना है इसके बारे में तो देखा होगा, तो साइक्लोन जब भी मूव करती है, एयर मूव करती है, उसमें बहुत सारी ऐसे एयर इकट्ठी मूव करती है, बट अराउंड अ सिंगल स्पॉट. कभी देखा है? मतलब वो ऐसा कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज हैविंग अ पर्टिकुलर आई. ठीक है, वो जो सेंट्रलाइज्ड पार्ट है उसको हम बोलते हैं आई, EYE. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एन आई. अब उस आई के अराउंड सारी जो हवा है वो मूव करती जाएगी, एंड इट इज सीम्ड एज इफ इट इज सिंकिंग इन बिटवीन. सिंकिंग मीन्स बाहर की सारी हवा को इकट्ठा करके वो सिंक करवाती है, अंदर की तरफ डालती, इसीलिए उसका स्ट्रक्चर जो है वो कोन जैसा होता है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ साइक्लोन. सो टर्न वाइज टर्न वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल अबाउट द विंड, स्टॉर्म एंड द साइक्लोन्स हियर. Starting with the first, that is the wind. Wind is what? That is the moving air. The moving air is called wind. So here we can describe the properties of the air. Simply the air, the properties of the air can be described here. That is number one, air exerts pressure. हाँ जी, ये विंड के अंदर नहीं, एयर की प्रॉपर्टीज हैं. हाँ जी, लिखो यहाँ पे, व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. नंबर वन इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. मीन्स व्हाट? दैट इज एयर जो है इसमें प्रेशर एक्सर्ट करती है, एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है. ठीक है. सेकेंड, air has weight which can be experienced, has weight that can be experienced on the different objects, or what are the properties? Air occupies space. Yes, air occupies space. बस इतनी है. हाँ जी, heated air becomes light in weight. हाँ जी, heated air becomes lighter. और कोई? The moving air is accompanied by the reduced pressure. सबसे पहला हमने क्या लिखा? Air exerts pressure. ठीक है, और यहाँ पे क्या है? जब एयर मूव कर रही होती है एट अ वेरी हाई स्पीड, ठीक है, इट इज accompanied by reduced pressure. So moving air is accompanied by, accompanied mean उसके साथ चलता है, उसके साथ से योग देता है.
The moving air is accompanied by reduced pressure. Moving air is accompanied by reduced pressure. Okay. So these are the some of the properties which are exerted by the air or which are the properties of the air. So यहाँ पे हमने इन properties को experimentally prove भी करना है, ठीक है, हमने इनका proper proof देना है, इन सारी properties को हमने साथ साथ में prove करना है, that is experimental. आपने इसके लिए activities perform करनी है. आप लोग को साइंस में पेपर में क्वेश्चन आता है, how can you perform an activity or create an activity or design an activity for proving that the air exerts pressure, ऐसा, ठीक है. तो ये सारी properties जो हैं वो हमने as such with the help of several activities इनको prove करना, ठीक है. परफॉर्मिंग हम इसकी कल करके दिखाएंगे, लेकिन आज इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो समझ लीजिए. दिस इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. नंबर 1, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. अब एक्सर्टिंग प्रेशर, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर मींस ये प्रेशर एक्सर्ट करता है. आपको पता है कि जब भी आप माउंटेनियस रीजन्स पे जाते हो या कहीं हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे कान बंद हो जाते हैं. कभी एक्सपीरियंस किया है? कान बंद हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं. कभी एक्सपीरियंस किया है किसी ने? यूजुअली कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है नोज में से, हायर एल्टीट्यूड्स पे जाने से होता है ऐसा. That is because of the atmospheric pressures difference. Why that happens is, it is because of the difference in the atmospheric pressure. होता क्या है, let's say this is a mountainous region, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए बता रही हूँ, सुन लो. This is the mountainous region and here down there this is the plain region, right? Plains पे हम रहते हैं, we are living in the northern plains, है ना. So these are the plains जहाँ पे हम रह रहे हैं. अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्रेजेंट है प्लेन्स के ऊपर, एटमॉस्फेरिक हमारे पास लेवल्स हैं, ये वाले लेट से, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है. अब प्लेन से कितना हाइट पे है, कितना ज्यादा हाइट पे ये एटमॉस्फेयर दूर है, ठीक है. इट इज एट अ ग्रेट हाइट एंड दिस ऑब्जेक्ट इज गेटिंग दिस मच ऑफ द एयर कॉलम जस्ट अबव इट. एयर कॉलम का मतलब क्या होता है, जैसे हम हैं, हमारा जितना विड्थ कवर्ड है उतना ही हमारे ऊपर एयर कॉलम क्रिएटेड है, उतना ही एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है. समझ आई मेरी बात? ठीक है. कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर उसका एयर कॉलम का प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है. अब हमारी बॉडी जो है वो प्लेन्स में रहने के लिए तैयार है ना. वी आर लिविंग सिंस लॉन्ग इन दीज प्लेन्स. हार्डली आप कभी कभी जाते हो माउंटेनियस रीजन्स में, यू आर नॉट यूज्ड टू लिव इन द माउंटेन्स, है ना. जो लोग माउंटेन्स पे रह रहे हैं दे आर नॉट यूज्ड टू लिव इन द प्लेन्स. करेक्ट? समझ आया? ठीक है. अब हमारी बॉडी को एडजस्टमेंट मिला है अकॉर्डिंग टू दिस मच ऑफ द एयर प्रेशर. जब आप माउंटेन्स पे चले जाते हो, दीज आर द माउंटेन्स, लेट्स से ये माउंटेनियस रीजन है, हायर एल्टीट्यूड्स है. यहाँ पे जब हम गए तो यही वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना एयर कॉलम आया, सिर्फ इतना, कितना थोड़ा है ना. जब हम प्लेन्स में थे हमारे अंदर ब्लड एक प्रेशर जनरेट कर रहा था, आप लोगों ने पढ़ा पिछले चैप्टर में, ब्लड प्रेशर, ठीक है. वो ब्लड प्रेशर एक नॉर्मलाइज्ड ब्लड प्रेशर उस तरीके से यूज टू हो चुका है कि हमारा बाहर का प्रेशर कितना है, बैलेंस्ड है. यहाँ कभी भी आपके कान ऐसे भारी नहीं होंगे, बंद नहीं होंगे. हुआ कभी घर पे बैठे बैठे कान बंद हो जाए, यहाँ स्कूल में यहाँ पे कान बंद हो जाए? नहीं होता है ना. भारीपन हमारे कानों में नहीं आएगा जब तक हम प्लेन्स में. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी यूज टू हो चुकी है, राइट. अब जब हम हायर एल्टीट्यूड्स पे गए, माउंटेन्स पे गए, हमारी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी. उसके अकॉर्डिंग जितना इसके ऊपर एयर कॉलम था, है ना, ज्यादा एक्सर्ट कर रही थी, ब्लड प्रेशर ज्यादा आ रहा था. लेकिन जब हम माउंटेन्स पे गए, अंदर तो ब्लड प्रेशर उतना ही है, प्रेशर तो उतना ही एक्सर्ट हो रहा है, लेकिन बाहर तो एयर कॉलम थोड़ा रह गया. अब क्या होगा, हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्लॉकेजेस ले आते हैं इन द नेचुरल ओपनिंग्स. यहाँ कई बार वो ब्लड वेसल्स इतना ज्यादा हाई यू कैन से प्रेशर होने की वजह से बर्स्ट हो जाते हैं एंड द ब्लीडिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम द नोज. डेंजरस नहीं होता है, लेकिन कई लोगों के लिए हो सकता है, कई लोगों के लिए डिपेंड करता है, हो सकता है, ठीक है. बिकॉज अगर इतना ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर और डिफरेंस आएगा तो वो कई बार हार्ट प्रॉब्लम्स में भी जा सकता है. ठीक है. हाँ जी, क्लियर हुआ? आगे से अगर आपसे कोई पूछे माउंटेनियस रीजन्स पे जाते हुए
कि आपके कान भारी क्यों हो रहे हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डन। कभी कोई फ्लाइट में बैठा है, एरोप्लेन, हाँ, उसमें कान भारी होते हैं, बंद ही हो जाते हैं लिटरली, है ना, पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, और पूरी तरह से जब भी वो खुलते हैं एंड दैट हैज अ क्रैकिंग, यू कैन से पेन, क्रैकिंग पेन आती है हमारे कानों में जब भी वो वापस खोलते हैं। नहीं हुई थी? जब भी, अच्छा चलो लिसन, जितना आप हायर एल्टीट्यूड्स पे जाओगे उतना ही तुम्हारा ब्लड प्रेशर उसके अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है। इसीलिए वहां पे आप लोग को एयर लोब्स वो दे दी जाती है, वो जो क्या होती हैं, एयर बड्स दे दी जाती है कि आप उसके अंदर फिट करके रख लो, ताकि आपको बाहर वाला एयर प्रेशर और आपकी बॉडी का एयर प्रेशर का डिफरेंस जो है वो ना आए। लेकिन हम इंडियंस मानते नहीं, है ना, हमने फिर एक्सपीरियंस करके देखना होता है कि अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, तो बाद में पता चलता है क्या होगा, है ना। चलो, दिस इज अ नेचुरल एप्लीकेशन। अगर आपसे कोई पूछता है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? इन योर डेली लाइफ। सो दिस इज एन एप्लीकेशन फॉर एयर एक्सर्टिंग प्रेशर। एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन मींस आप इस साइंटिफिक प्रिंसिपल को कहाँ अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, कहाँ अप्लाई करते हैं? इस इम्बैलेंस में, और जो हमारी हैवीनेस ऑफ द ईयर्स या बर्स्टिंग ऑफ द नेजल ब्लड वेसल्स लीडिंग टू द नोज ब्लीडिंग, उसमें हमारा ये कंसेप्ट जो है वो अप्लाई होगा। डन। नाउ हाउ कैन वी प्रूव इट थ्रू एन एक्टिविटी? एक्टिविटी वाइज हमने इसको कैसे प्रूव करना है दैट एयर इज एक्सर्टिंग प्रेशर? व्हाट यू गोइंग टू डू इज टेक द मेटल कैन, सिंगल मेटल कैन आपने लिया, लेट्स से दिस इज द मेटल कैन, बुक में है आपके गिवन, हाँ जी। सो दिस इज द मेटल कैन, लिसन, हाँ वो भी एक्सर्ट प्रेशर में आ सकता है। हाँ जी, लिसन, टेक अ मेटल कैन, राइट, दिस इज द मेटल कैन, जो कोल्ड ड्रिंक कैन होते हैं आपके, ठीक है, वो हमने लेने हैं, लेकिन हमें इसको क्लोज भी करना है, ठीक है। तो उस तरीके का मेटल कैन लेना है जिसके ऊपर लिड लग सके, जैसे आपके वो प्रिजर्व्ड फूड वाले कैन्स होते हैं, उसका लिड वापस फिर से फिक्स हो सकता है, ठीक है। नाउ फिल दिस विद वाटर, आपने इसमें अच्छे से पूरा पानी भर देना है, एंड देन जब इसमें पानी भर दिया तो क्या इसके अंदर एयर प्रेजेंट है? नहीं है, इसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं है क्योंकि पानी आ गया उसकी जगह पे। जब आपने पूरा इसको पानी के साथ भर दिया एंड देन क्लोज इट वेरी टाइटली, जो इसका लिड था उसको हमने पूरा अच्छे से क्लोज कर दिया, ठीक है। अब अंदर क्या है? पानी है, लेकिन वो पानी क्या है? पूरी तरह से फिल्ड है, एयर अंदर नहीं है, मतलब एयर का जो पहले प्रेशर लग रहा था उसकी वॉल्स के ऊपर, अब वो खत्म हो चुका है कि नहीं। एक वॉल्ड कैन है, अगर सिंपल कैन है कोई भी, अगर आपकी बॉटल्स हैं पानी की, उनका एक प्रॉपर क्या कहते हैं शेप है, तो वो शेप क्यों है? क्योंकि उसके बाहर से जितना प्रेशर लग रहा है उतना ही अंदर से भी लग रहा है उसकी वॉल्स पे, ठीक है, हेंस इट इज हैविंग अ प्रॉपर शेप, राइट। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, हमने उसको पानी से फिल कर दिया, अंदर से शेप उसका बरकरार है, लेकिन एयर का प्रेशर अंदर उसका बंद हो गया। डन, राइट। अब हमने क्या किया, इसको एक टब में रखा या एक ट्रो में रखा, सिंपल ट्रो के अंदर रखना है। ट्रो क्या होते हैं? ट्रेज, दैट विच आर टाइप ऑफ यू कैन से सेमी ट्रे, ट्रे भी है और टब भी है, दैट इज यूज्ड इन द लेबोरेटरीज, ठीक है। छोटी विड्थ वाले ट्रे टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन उसमें विड्थ होता है, डेप्थ होता है, ठीक है। तो हमने उसको क्या किया, इस कैन को रख दिया ट्रो के अंदर। डन। ऊपर से हमने जब इसके ऊपर गर्म पानी डाला, दिस इज वी आर गोइंग टू स्प्रिंकल द वाटर, दैट इज द हीटेड वाटर और बॉइल्ड वाटर। जब आप इसके ऊपर से पानी डाल दें, इनिशियली क्या हो रहा है, बाहर से इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, हाँ जी, ये प्रेशर पड़ रहा है एयर का, ठीक है। अंदर पानी था कैन के अंदर, ऊपर से आपने हीटेड वाटर डाला, ये एज सच उस एयर को ट्रांसलोकेट करके नीचे चला जाएगा, खाली, खत्म, ठीक है। इसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर इसके अंदर आपने पानी फिल किया है, अंदर से भी उतना ही पानी प्रेशर लगा रहा है जितना बाहर से लग रहा है। डन। अब सेकेंड टाइम आप क्या करेंगे, इसको खाली छोड़ेंगे। अब ये पानी रिमूव कर दिया, लिड में से निकाल दिया,
अंदर से भी एयर प्रेशर लग रहा है, बाहर से भी लग रहा है, दोनों तरफ से लग रहा है। अब खाली कैन लिया है मैंने, पानी नहीं लिया कैन के अंदर। सेकेंड टाइम आपने क्या किया, पानी नहीं लेना, ये पानी मैंने रिमूव कर दिया, अंदर से भी प्रेशर लग रहा है, बाहर से भी लग रहा है, शेप मेंटेन। ठीक है, जब आपने इसके ऊपर पानी डाला तो क्या होगा, अभी हमने फर्स्ट में क्या बोला था, पानी ऊपर से डालने से क्या हुआ, जितना एयर था वो डिसलोकेट हो गया साइडों से, बोला था ना। पर अंदर क्योंकि पानी था तो उसने शेप मेंटेन रखा। अब जब अंदर से खाली है, अंदर खाली है, बाहर का एयर आप डिसलोकेट कर रहे हो गर्म पानी डालने पे, है ना, अंदर का एयर तो नहीं डिसलोकेट हुआ, वो क्या करेगा, इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, जब भी ये अंदर वाला प्रेशर बढ़ गया, अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई अबव हो गया और बाहर वाला प्रेशर कम हो गया, तो यहाँ क्या आएगा, दिस कैन इज गोइंग टू बी क्रश्ड, ये कैन की क्रशिंग हो जाएगी। गेटिंग डन। ये क्यों हुआ, बाहर से अंदर वाला जब तक था पानी तब तक के लिए कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि पानी ने अंदर से प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ है वॉल्स के ऊपर। लिखने के लिए हाँ बुक में है, लिखवाते हैं मैम क्या, पूरा ऐसे डिक्टेट करके नहीं ना लिखवाते, फिर जो आपने समझा है उसको जस्ट अपने पॉइंट्स में बना लो। ठीक है, यू कैन जस्ट प्लेस इट इन द पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, सो दिस इज वन वे बाय विच we can show that air is exerting the pressure. Second way you can have this, एक another तरीका है हमारे पास, that is by inflating the balloons, right? Inflating the balloons. हाँ जी, by inflating the balloons also we can have the pressure exerted on us, right? How is this possible? बताओ कैसे शो करेंगे by inflating the balloons? बैलून भरते रहेंगे, हवा भरेंगे, हाँ अंदर की जो रबड़ है हाँ वो एक्सपैंड होती जाएगी, हाँ वो बर्स्ट हो जाएगा। या आप लोग सिंपल ये कर सकते हैं कि आपने जैसे बैलून फिलिंग अगर लगाई है, आपने मशीन लगाई है जो कि एयर फिल कर रही है बैलून्स के अंदर, एंड जस्ट बाय कीपिंग उसके साइड्स पे एक हाथ रख लो। ठीक है, मशीन वो फिल करती जा रही है, आपका जो बैलून है उसको फिल करती जा रही है, आपके हाथों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है कि वो बैलून इधर से उधर से ऐसे इन्फ्लेट होकर साइडों पे चला जाता है, बट यू फील दैट प्रेशर ऑन योर हैंड्स एज वेल। ठीक है, सो बोथ वेज यू कैन से, जब भी आपने इन्फ्लेट किया या तो आप उसको फील कर सकते हो ऑन द हैंड्स, फील ऑन द हैंड्स, आपने एक्टिविटी लिखनी है किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, वी कैन फील इट ऑन द हैंड्स और इट विल बी बर्स्टेड। ठीक है, it gets bursted. Why? Because the air, why this is because the air that is exerting the pressure on the walls of the balloon. Getting? ठीक है, हाँ जी, any doubt? कोई question? All clear? Okay. हाँ जी, कुछ पूछना है? फर्स्ट वाली फिर से समझाऊं, क्या नहीं समझ आया इसमें, फर्स्ट केस सेकंड केस? इसमें सुनो, हमने दो चीजें की हैं, पहले हमने मेटल कैन लिया, पानी से फिल किया। ठीक है, जब तक मेटल कैन के अंदर पानी भरा हुआ था, पूरा ऊपर तक पानी भरा था, लिड था, अंदर पानी भी तो प्रेशर एक्सर्ट करता है ना वॉल्स के ऊपर। बाहर से जब आप इसके ऊपर हीटेड वाटर डाल रहे हो या वाटर डाला आपने, तो इसके साथ लगती हुई हेयर जो है वो सारी हिल जाएगी। पानी आ रहा है जब, तो हवा तो डिसलोकेट हो जाएगी ना। When you are pouring water, let's say this is the can, जब आपने इसके ऊपर पानी डाला, जब आपने पानी इसके ऊपर एक्सर्ट किया, इसके ऊपर पोर किया, तो साइड से एयर जो है वो डिसलोकेट हो गई। समझ आया? अंदर पानी था, उसने अपना शेप जो है बरकरार रखा। डन? ठीक है, सेकंड में हमने क्या किया, खाली कैन लिया, खाली कैन that is not having the water in it, simply having air in it, right? एयर उसके अंदर है और हमने क्या किया, उसको लिड को क्लोज कर दिया। डन? अब अंदर से भी एयर जा रही है उसकी वॉल्स के ऊपर, बाहर से भी एयर लग रही है वॉल्स के ऊपर। ठीक है, दोनों तरफ से एयर लग रही है ना, अंदर से भी लग रही है, बाहर से भी लग रही है, उसका प्रेशर जो है वो मेंटेन्ड है। लेकिन आपने बाय पोरिंग द वाटर ऑन इट, जब पानी इसके ऊपर पोर किया
तो ये वाली जो एयर है ये डिसलोकेट हो गई, बाहर प्रेशर खत्म हो गया, अंदर ज्यादा है, तो ये क्या होगा, दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इन द क्रशिंग ऑफ द कैन। जैसे अभी मैंने बोला बर्स्टिंग ऑफ द बलून, अंदर प्रेशर ज्यादा है, जब तक बाहर से प्रेशर आ रहा था तब तक के लिए वो बैलेंस था, जब बाहर वाला प्रेशर हमने कम कर दिया तो क्या हुआ, इट स्टार्टेड एक्सर्टिंग द प्रेशर मोर एंड हेंस कंपैरेटिवली मोर एंड हेंस इट विल बी क्रश्ड। डन, ओके। सेकंड लास्ट गर्ल, आपका भी यही डाउट था, दिस गर्ल क्या, थर्ड लास्ट, अच्छा नहीं, यू आर ऑल्सो रेजिंग योर हैंड ना, वेरी बैड, अगेन यू आर अ प्रॉब्लम। Sit quietly, let the others also study, please be quiet. Air has weight, ये कैसे बताएंगे आप बैलून से, हाँ हाँ जी, so this is also the air exerts the, sorry, air has weight. Silent, silent. Now this is the second property, air has weight. How we are going to tell that air is having the weight, the more will be the air, the more will be the weight. अब air को हम ऐसा देख तो सकते नहीं है, उसका वेट भी इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। हमने क्या करना है, सिंपल एक स्टिक लगा के दोनों तरफ हमने बैलून्स को हैंग करना, ठीक है। वी आर गेटिंग द टू बैलून्स बट दे आर ऑफ द डिफरेंट साइजेस, जैसे भी होते हैं बैलून्स, ठीक है। हाँ, एक हमने स्मॉल साइज का ले लिया और एक हमने लिया ही लार्ज साइज का, ठीक है। टू बैलून्स हमने लिए, डन। हवा किसके अंदर ज्यादा भरी हुई है, इसके अंदर, दैट इज ए बैलून इज हैविंग मोर एयर देन द बी बैलून। जब आप इसको हैंग करेंगे किसी सरफेस पे, व्हाट इट इज गोइंग टू बी, यस, दिस इज गोइंग टू बेंड लाइक दिस एंड हेंस द पॉइंट विल बी लाइक दिस, ठीक है। ये जो हमारा रिजल्टेंट आएगा, इट इज बी जो है वो राइज अप कर जाएगा और ए वाला हैंग डाउन कर जाएगा, ठीक है। दैट इज एयर हैज वेट। अदरवाइज अगर ये वेट ना होता है इसका, तो ये दोनों सेम पे ही पड़ी रहती, क्योंकि दोनों बैलून है और दोनों में एयर है, ठीक है। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, ऑफ कोर्स वो भी आपका इन्फ्लेटिंग ऑफ बैलून से ही हो जाना है। एयर को जगह चाहिए, इसीलिए वो वॉल्स ऑफ बैलून को दूर करता है बाय इन्फ्लेटिंग, ठीक है। सो एयर ऑक्यूपाई स्पेस, ये भी आप यहाँ पे करेंगे, इन्फ्लेट अ बैलून and the air is filled in it. When the air is filled, it is occupying the space and hence the walls of the balloon are going to be expanded. ठीक है, हाँ जी। पानी से heated air becomes lighter, वो लिफाफे से, हाँ। बॉइल्ड वाटर डालने से किस पे डालेंगे, बबल्स कैसे आते हैं, वो तो एयर इज नॉट देन ऑक्यूपाइंग द स्पेस ना, उसमें आप कैसे शो करोगे एयर इज ऑक्यूपाइंग, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज बाय इन्फ्लेटिंग ऑफ द balloon you can show. हाँ जी, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज heated air becomes lighter. This can be shown by an activity. Listen, fourth one, that is heated air becomes lighter. अब ये कैसे शो करनी है हमने, फॉर दिस वी टेक टू पेपर बैग्स, दो पेपर बैग लेने हमने। पेपर बैग क्या होते हैं, जो लिफाफे हैं आपके, है ना, दैट इज बट हैविंग द पेपर्स। पॉली बैग नहीं लेने, क्योंकि हीट करेंगे तो वो जल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। हमने क्या लेने हैं, टेक टू पेपर बैग्स। फॉर दिस फोर्थ वन एक्टिविटी इज टेक टू पेपर बैग्स एंड हैंग देम इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा हैंग करना है हमने। ऐसे ही स्टिक लिया आपने, जो आपने पहले स्टिक लिया था जैसे बलून्स का, टाई किया सेंटर से, ठीक है। और हमने पेपर बैग को हमने हैंग कर देना है समहाउ इसके ऊपर, ठीक है। ये थ्रेड लगा के आपने ये पेपर बैग 1 एंड सिमिलरली थ्रेड लगा के पेपर बैग 2, दिस इज पेपर बैग 2 ऑफ द सेम साइजेस। डन, हमने दो पेपर बैग्स लिए यहाँ पे, हैंग किया उनको, these are the paper bags, right? So this is a paper bag,
that which is hanged inverted on the two corners of a stick. And now light up a candle beneath one of the paper bags. On either of the paper bags में आपने क्या करना है, एक कैंडल लाइट अप करनी है. I'm just erasing this. I'm just erasing it. किसी भी एक के नीचे, आप A वाले पेपर बैग के नीचे या B वाले पेपर बैग के नीचे कहीं पे भी you place a candle and after this you light it up. ठीक है, सिर्फ इसका जो हीट है इस कैंडल का वो जाना चाहिए हमारे पेपर बैग के अंदर, जले नहीं, जले नहीं, इतना ध्यान रखना है. ठीक है, इसीलिए हमने पॉली बैग्स नहीं लिए हैं, पेपर बैग्स लिए हैं. अब यहाँ हमने क्या किया, जब ये हीट अंदर जा रहा है, ऑल द स्मोक दैट इज हीटेड एयर इज गोइंग ऑन, है ना. अभी हमने फोर्थ पॉइंट लिखा क्या था, हीटेड एयर बिकम्स लाइटर. जब ये हीट अपनी भेजेगा तो इसके अंदर की एयर भी हीटेड अप हो जाएगी. ठीक है, दिस इज बिकमिंग लाइट इन वेट एंड हेंस व्हाट विल बी द रिजल्ट, दिस बिकम्स हेवियर, ये डाउन और ये ऊपर, यानी ये स्टिक का जो हमारा चेंज आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. हाँ, जैसे बैलून में हुआ था ऐसे ही यहाँ पे हीटेड एयर है, हीटिंग की वजह से आपको कैंडल प्लेस करना पड़ेगा beneath either of the paper bags. Getting? Any question, any doubt? All clear? Okay, so next activity we will be doing, that is with tomorrow. Okay, we'll continue this tomorrow. Any question to anyone?